Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is understanding quadrilaterals. देखिए quadrilaterals के बारे में हमें ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पता हैं कि ये फिगर होती है जो फोर साइडेड क्लोज फिगर होती है जिसमें हमारे पास बहुत सारी अलग अलग टाइप की शेप्स आते हैं. तो चलिए यहाँ पर हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इंट्रोडक्शन. So here we are having introduction, that is we have already learned in the previous classes about polygons and its different types as quadrilateral, rectangle, square, parallelogram, rhombus, etc. So these are all quadrilaterals. So next here we are having our polygons. So polygons क्या होते हैं इनके बारे में देखते हैं. Okay, so that is a polygon is a closed plane figure bounded by 3 or more lines. अगर आप कोई भी क्लोज फिगर देखते हैं, ठीक है, जो 3 लाइन्स या 3 लाइन सेगमेंट से ज़्यादा से बनी हुई है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन. ओके, सो यहाँ पर बोला गया है हमसे, देखिए अ पॉलीगन. अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स के बारे में बोला गया है. अ पॉलीगन बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्राइंगल. अ पॉलीगन बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल. अ पॉलीगन बाउंडेड बाय द 5 लाइन्स इज कॉल्ड पेंटागन. And a polygon bounded by 6 line segments is called hexagon. Then we are having a polygon bounded by 7 line segments is called heptagon or septagon. Mostly हम heptagon ही use करते हैं. Then we are having a polygon bounded by 8 line segments is called octagon. And polygon bounded by 9 line segments is called nonagon. Polygon bounded by 10 line segments is called decagon. Okay. So here we are having a polygon bounded by n line segments is called polygon or n-gons. तो ये हो गया हमारा polygon. अब आता है हमारे पास next, that is convex and concave polygon. So here we are having, this is concave quadrilateral or convex quadrilateral. So let's see, a polygon in which the measure of each angle is less than 180 degree is called convex polygon. अगर हम कॉन्वेक्स पॉलीगन की बात करें तो इसके सारे एंगल्स कितने के होंगे, 180 डिग्री से छोटे होंगे. ओके, देन इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड द कॉन्वेक्स पॉलीगन हैज n sides and its interior angle is a sum given by n minus 2 into 180 degree. तो अगर हमें क्या निकालना है, देन इट्स इंटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो वो कैसे निकालेंगे, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री. तो यहाँ पे हमें गिवन है द इंटीरियर एंगल सम ऑफ 6 साइडेड कॉन्वेक्स पॉलीगन इज दैट इज n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री एंड इज अ नंबर ऑफ साइड्स. तो उसके बिहाफ हम यहाँ पे निकाल पाए हैं कितना, 720. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग concave polygon, a polygon in which the measure of at least one of angle is more than 180 degree is called concave polygon. Okay, so यहाँ पर चलते हैं. ABCD is a concave quadrilateral. Here we shall consider only convex quadrilateral. तो concave quadrilaterals तो नहीं देखते, बट हम यहाँ पे क्या देखेंगे, convex quadrilaterals के बारे में ही पढ़ेंगे. So next here we are having regular एंड इरेगुलर पॉलीगन. अगर हम रेगुलर पॉलीगन्स की बात करें तो रेगुलर पॉलीगन्स वो पॉलीगन्स होते हैं जिनमें आपकी नंबर ऑफ साइड्स और लेंथ ऑफ साइड्स और एंगल्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे. सो डेफिनेशन देखते हैं. इन अ रेगुलर पॉलीगन ऑल साइड्स ऑफ द सेम लेंथ एंड ऑल एंगल्स आर ऑफ सेम मेजर्स. जस्ट लाइक अगर आप स्क्वायर की बात करें तो साइड सेम होंगी, एंगल सेम होते हैं. अगर आप इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें, all sides are equal and angles also equal. Then we are having irregular, जिसमें हमारे पास length of side and angles क्या होंगे, different होंगे. So if we talk about irregular polygons, so regular नहीं है वो क्या होंगे हमारे irregular polygons. Okay, just like rectangle हो गया, क्योंकि इसमें opposite sides क्या होती है, equal होती है, adjacent sides होती है हमारी unequal. Okay. Next here we are having two terms, simple curve and simple closed curve. Simple curve that does not cross each itself. तो ये simple curve होते हैं जो हमने ड्रॉ कर दिया, एक दूसरे क्रॉस नहीं कर रहे. लेकिन simple closed curve is a connected curve that does not cross itself and ends
एट द सेम पॉइंट वेयर इट बिगिंस। तो यहाँ पर हम उसको कैसे सही कर सकेंगे। ओके, next here we are having some examples. Okay, so here we are having our exercise 3.1. so here we are having which of the following are simple closed figures. so simple closed figures की बात करें तो ये हमारे पास हो जाए A पार्ट, B पार्ट, C पार्ट नहीं होगा क्योंकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर आर पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में जैसे हमारे पास हो गया A पार्ट, B पार्ट, ठीक है, क्योंकि कर्व नहीं आते और ये भी क्या है हमारा नहीं आएगा। चलिए इसी के साथ हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सो हियर वी आर हैविंग इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4 फाइंड द एंगल्स। ओके, सो हियर वी आर हैविंग लेट the angles be that is 2x, 3x and 4x। तो ये हमारे एंगल हो गए। Now we know that we are having a angle sum property, so we are having angle sum property. It says that sum of all angles of a triangle is 180 degree. So we are having angle, let's assume angle A, angle B and angle C equals to 180 degree. तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास एंगल्स हो गए हैं जस्ट लाइक 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो ऐड करते हैं, दैट इज 9x इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब सॉल्व करके x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारी 20 डिग्री। So this is 2, 3, 4. Okay, let's pick 7th question from here. So here we are having a triangle jam. This is G A M. So here we are having thrice of angle J equals to 4 times of angle A equals to 6 times of angle M. So अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ अगर यहाँ पर, तो हमारे पास एंगल J जो होगा वो क्या हो जाएगा 4/3 ऑफ एंगल A। ओके, और अगर मैं इन दोनों साइड्स को कंपेयर करूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये मल्टीप्लाई में से जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, एंगल M इक्वल्स टू 4/6 ऑफ एंगल A। तो हमारे पास G की वैल्यू आ गई इन द फॉर्म ऑफ A, M की वैल्यू आ गई इन द फॉर्म ऑफ A। अब हमें क्या करना है, एंगल्स निकालने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने वाला हूँ, एंगल A प्लस एंगल M प्लस एंगल J इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखेंगे दैट इज एंगल A इज एंगल A, angle M is 4/6 of angle A plus angle J is 4/3 of angle A equals to 180 degree. ओके, तो चलिए यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 ऑफ एंगल A प्लस 4 ऑफ एंगल A, और यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 4 ज़ा 8. This is 8 of angle A equals to 180 degree into 6. मैंने क्या करा, दोनों साइड मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, क्योंकि मैंने एलसीएम देखा तो 6 आ गया। चलिए तो इसको ऐड करेंगे तो दिस इज
6 plus 4 10, this is 18 of angle A equals to 180 degree into 6. तो चलिए यहाँ पे देखें एंगल A इक्वल्स टू 180 डिग्री इंटू 6/18. इसे कैंसिल आउट करेंगे, दिस इज 10 डिग्री. सो एंगल A वी आर हैविंग 60 डिग्री. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एंगल J और एंगल M भी है, तो इनकी भी वैल्यू निकालनी है हमें. ओके, तो एंगल J है 4/3 ऑफ एंगल A, तो यहाँ पे करेंगे 4/3 ऑफ एंगल A इज 60 डिग्री. सो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, दिस इज 20 एंड दिस इज 80 डिग्री. अब यहाँ पर आते हैं, दैट इज 4/6 ऑफ एंगल A इज 60 डिग्री. देन इसे सॉल्व करेंगे, दिस इज 10 डिग्री एंड दिस इज 40 डिग्री. ओके, तो 60 40 80, तो ये क्या है हमारे पास, बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो हमारे पास तीनों एंगल्स का सम आ गया. यस, चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, दैट इज सम ऑफ एक्सट्रा एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज ऑलवेज 360 डिग्री. ओके, so next here we are having angles and property of quadrilateral, that is 360 डिग्री और 4 राइट एंगल्स. तो यहाँ पर हमें पता है एक्स्ट्रा एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा, एंड क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल्स का सम भी 360 डिग्री होगा. सो here we are having our exercise that is 3.2, एंड यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, सेकेंड पार्ट. So here we are having our question that is one angle of quadrilateral is 120 degree and the other 3 angles are equal. Find the other 3 angles. तो चलिए यहाँ पे एक छोटा सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर लेते हैं, just like this. Okay, so यहाँ पे आते हैं just like A, B, C and D. यहाँ पे देखिए क्वाड्रिलेटरल का एक एंगल कितने का है हमारे पास, 120 डिग्री, और यहाँ पे बाकी जो एंगल्स है वो सब इक्वल है, तो मैं x मान लेता हूँ. ओके, तो एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल के अकॉर्डिंग इंटीरियर एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री. तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू 360 डिग्री. ओके, तो चलिए, तो यहाँ पर एंगल A हमारे पास हो गया 120 डिग्री, एंड बाकी जितने एंगल्स थे वो सब इक्वल थे, तो हमने यहाँ पे x मान लिया, दैट इज 360 डिग्री. सो दिस इज 120 डिग्री प्लस दिस इज 3x इक्वल्स टू 360 डिग्री. चलिए, अब ये प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 120 डिग्री. तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू, माइनस करेंगे, दैट इज 240 डिवाइडेड बाय 3, दिस इज 80 डिग्री. यहाँ पर x आ गया हमारे पास 80 डिग्री. दैट इज योर आंसर. ओके, तो बाकी एंगल जो है वो कितने के होंगे, 80 डिग्री. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन. ओके, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. इसमें हमारे मोस्टली टॉपिक्स फिनिश हो जाएंगे, दोनों जो भी थे. क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे बोला गया है फाइंड द गिवन एंगल x एंड y. ओके, तो देखिए पहले हम y को देखते हैं. अगर हम यहाँ पे देखिए दोनों क्या एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं दैट इज एंगल DCB प्लस एंगल DCE इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री. और ये क्या है, हमारे लीनियर पेयर्स. ओके, तो यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास एक एंगल हो गया 60 डिग्री, एंड जो दूसरा एंगल है दैट इज y, एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री. सो यहाँ पर देखेंगे, सो y इक्वल्स टू 180 माइनस 60, दैट इज 120 डिग्री. ओके,
चलिए उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर एक्स निकालते हैं। देखिए एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेटिक के अकॉर्डिंग हम इसको यूज़ करेंगे। तो चलिए उसको हम इधर ले आते हैं। सो वी नो दैट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास 4 एंगल्स हैं और उनका सम कितना होना चाहिए 360 डिग्री। सो वी कैन से दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यहाँ पर देखेंगे दिस इज 110 डिग्री, एंगल बी इज एक्स, एंगल सी इज 60 एंड डी इज 85 डिग्री। ओके सो उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं तो इनको ऐड करेंगे। दिस इज 60 एंड 145 245 255 डिग्री प्लस एक्स। तो ये हो गया हमारा 360 डिग्री। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालने तो हमारे पास हो जाए 360 माइनस 255 दैट इज 105 डिग्री। ओके तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेट। नेक्स्ट ईयर वी आर हैविंग टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटल्स। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर आते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेटल पर दैट इज पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या होता है? एक क्वाड्रेटल होता है जिसमें हमें अपोजिट पेयर्स देखने के लिए क्या मिलेंगे? इक्वल। सो वी कैन से दैट अ क्वाड्रेटल विद बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज अ पैरेललोग्राम। ओके तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम है जस्ट लाइक पी क्यू आर एस। ठीक है पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम क्योंकि अपोजिट पेयर्स क्या है यहाँ पर? पैरेलल है। सो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज गिवन वो देख लेते हैं। इट हैज़ 4 वर्टिसेस जस्ट लाइक पी क्यू आर एस, 4 साइड्स पी क्यू क्यू आर एस एस पी, 4 एंगल्स एंगल पी क्यू एंगल क्यू एंगल आर एंड एंगल एस, एंड इट हैज़ 2 डायगोनल्स पी आर एंड एस क्यू। नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग एडिसेंट साइड्स एंड अपोजिट साइड्स। एडिसेंट एंड अपोजिट साइड्स की बात करें सो एडिसेंट साइड्स वो होते हैं इसमें कॉमन आपको वर्टेक्स देखने के लिए मिलता है, और अपोजिट साइड्स होती है इसमें आपको कॉमन वर्टेक्स देखने के लिए नहीं मिलता। अब देखिए जैसे यहाँ पर है हो गया पी एस एंड एस आर, इनमें कॉमन वर्टेक्स क्या आ रहा है? एस। तो ये क्या हो गई हमारी एडिसेंट साइड्स। ओके सेम गोज विद एडिसेंट एंगल्स एंड अपोजिट एंगल्स। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे? एंगल पी एंड आर एंड एडिसेंट एंगल्स होंगे पी एंड एस क्यू, क्योंकि इसमें कॉमन साइड आ रही है। ठीक है चलिए देन उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। ये तो हम पढ़ चुके हैं। बट अपोजिट साइड्स ऑफ सेम लेंथ, मतलब अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती हैं। अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंड एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है यहाँ पर पैरेललोग्राम में? 180 डिग्री। एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब जब भी डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो इक्वली इंटरसेक्ट करते हैं। ओके नेक्स्ट इज स्पेशल पैरेललोग्राम्स। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है रोम्बस, जिसमें आपको ऑल 4 साइड्स क्या देखने के लिए मिलेगी? इक्वल। सो वी कैन से दैट ऑल 4 साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल एंड डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। So we can say that a parallelogram in which 2 adjacent sides are of equal is rhombus. So यहाँ पर properties देखते हैं rhombus की। All sides are of same length means PQ, QR, RS are equal. Then we are having opposite angles are of same natures, क्योंकि ये parallelogram है तो इसके भी opposite angles क्या होंगे? Equal होंगे। Then again adjacent side angles का sum कितना होगा? 180 डिग्री, और डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे एट राइट एंगल। ओके नेक्स्ट आते हैं हम रेक्टेंगल पर। तो यहाँ पे बोलेगा अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री इज अ रेक्टेंगल। तो अगर हम रेक्टेंगल का एक एंगल की बात करें तो ये कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि देखिए 90 डिग्री तो एडजेसेंट एंगल भी कितने का होगा? 90 डिग्री। क्योंकि इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री, और अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होते हैं। तो रेक्टेंगल में हमेशा सारे एंगल्स कितने के होंगे? 90 डिग्री। So we can say that in properties of rectangle, that is opposite sides
are of same length. All interior angles are of 90 degree. Diagonals are of same length and diagonal bisect each other. Bisect करेंगे but 90 degree पे करेंगे ये ज़रूरी नहीं है. Okay. Next here we are having a square. उस square की बात करेंगे. So a rectangle in which two adjacent sides are of equal is a square. Means इसमें सारी sides आपकी क्या होंगी? Equal होंगे. सारे angles equal होंगे of 90 degree. Diagonals भी equal होंगे और जिसको bisect भी करेंगे at 90 degree. चलिए तो properties देख लेते हैं. All sides are of same length. All interior angles are of measures of 90 degree. Diagonals are of the same length and diagonals bisect each other at right angle. Okay, so here we are having our exercise 3.3. So let's pick one question from here. Question number 3. तो चलिए एक पैराग्राम बना लेते हैं. So यहाँ पे हमें बोलेगा the shortest side of a parallelogram is 3.6 centimeter and longer side is half as much as, and the longer side is half as much again as the shorter side. तो जो शॉर्टर साइड है वो लॉन्गर साइड का कितना होगा? हाफ होगा. तो इसको डबल कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 7.2 सेंटीमीटर. ओके, तो चलिए यहाँ पे हमें पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर निकालते हैं. तो हमें पता है कि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होती है. तो ये भी 7.2, अगर ये 3.6 है तो ये भी कितना होगा? 3.6 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर देखेंगे दैट इज 7.2 सेंटीमीटर प्लस 3.6 सेंटीमीटर प्लस 7.2 सेंटीमीटर प्लस 3.6 सेंटीमीटर. तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 7.2 इंटू 3. सो दिस इज 3 2 6 7 3 21. So 21.6 सेंटीमीटर इज आवर आंसर. ओके, तो यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट था वो ये था कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है. हमें वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करना था. ओके, so next here we are having another question. चले यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं. दिस वन क्वेश्चन नंबर 7. ओके, तो ये हो गया हमारे पास रोम्बस. अब इन्होंने बोला है कि जो डायगोनल्स है वो 10 सेंटीमीटर और 24. तो अगर देखेंगे तो 10 का हाफ कितना हो जाएगा? तो एक हो गया 5 एंड दिस इज 5 एंड दिस इज 24 मीन्स 12 एंड 12. और हमें पता है जो डायगोनल्स है वो क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल. तो मतलब ये यहाँ पर क्या फॉर्म कर रहे हैं? 90 डिग्री. तो अगर हम देखें ध्यान से तो ये एक राइट एंगल फॉर्म हो गया जिसमें परपेंडिकुलर और बेस गिवन है. तो हम यहाँ पे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. बेस कितना है पास? 12 स्क्वायर, परपेंडिकुलर 5 स्क्वायर एंड ये हो जाएगा अंडर रूट एच. सो यहाँ पर देखेंगे दैट इज 144 प्लस 5 5 25. तो यहाँ पे देखेंगे 9 एंड दिस इज 6 एंड 1. तो स्क्वायर रूट है इधर आ जाएगा. तो दिस इज 13. सो हाइपोटेन्यूज इज 13 एज आंसर. ओके, सो रोम्बस की साइड कितनी हो गई? 13 सेंटीमीटर. तो हम यहाँ पर सेंटीमीटर भी यूज़ कर लेते हैं एज अ यूनिट. ओके, चलिए. ओके, तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं. दिस वन. तो यहाँ पे बोले क्वेश्चन नंबर 17 में द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 4:5 एंड इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 90 डिग्री फाइंड इट्स साइड्स. तो यहाँ पर मान लेते हैं लेंथ एंड ब्रेथ बी 4x एंड 5x. ओके, तो यहाँ पर देखते हैं. अब हम यहाँ पे पेरीमीटर गिवन है 90 सेंटीमीटर. साइड्स फाइंड आउट करनी है. सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ. ये 2 तो 2 ही रहेगा. लेंथ इज 4x, ब्रेथ इज 5x एंड हियर वी आर हैविंग आवर पेरीमीटर. इसको करेंगे. सो पेरीमीटर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, सॉरी पेरीमीटर हमें यहाँ पर गिवन था 90 सेंटीमीटर.
ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 9x। सो इसको करेंगे तो 90 डिवाइडेड बाय 9 टू ज़ 18 इक्वल्स टू x। सो 18 5 से कितना होता है 90 होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू x। ओके, चलिए उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे तो 4 इंटू 5 करिए तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 20 सेंटीमीटर एंड 5 5 ज़ा 25 सेंटीमीटर। So this is the value. Okay, so here we are having as the topic that is some more types of quadrilateral. तो यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास आता है ट्रेपिज्म। तो ट्रेपिज्म की खास बात होती है, इसमें एक पेयर आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, पैरेलल, और एक पेयर कैसा मिलेगा, नॉन पैरेलल। ठीक है, तो अपोजिट साइड्स के यहाँ पे पैरेलल हैं और ये अपोजिट साइड्स क्या है, नॉन पैरेलल। सो अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड ट्रेपिज्म। ठीक है, जो हम यहाँ पर देख चुके हैं। सो फर्स्ट हियर वी आर हैविंग आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। इसमें हमारे पास जो साइड्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, सॉरी, हाँ, नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। नेक्स्ट इज राइट ट्रेपेजियम। तो यहाँ पर हमें एक जगह 90 डिग्री फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा, तो जब भी ट्रेपेजियम में 90 डिग्री फॉर्म होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, राइट ट्रेपेजियम। Next we are having our another figure that is kite. So kite क्या होता है, basically quadrilateral है with two pairs of adjacent sides of same length is a kite. अब देखिए ये दोनों आपस में इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो मीन्स एक पेयर एडजेसेंट साइड्स का यहाँ पर इक्वल मिलेगा। ठीक है, और एक पेयर क्या मिलेगा, अनइक्वल। अगर हम इन दोनों कंपेयर करते हैं अनइक्वल, तो ये आपको आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये होते हैं हमारे काइट। ओके, सो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ काइट देखेंगे। नो, नन ऑफ द साइड्स आर पैरेलल। ओके, नो लॉन्गर, द लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट द शॉर्टर वन, द डायगोनल इंटरसेक्ट एट द राइट एंगल। तो यहाँ पर डायगोनल्स क्या होते हैं, बाइसेक्ट होते हैं। लॉन्गर वाला शॉर्टर को करता है, बस लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट नहीं होता। ठीक है, ये शॉर्टर वाला हो जाता है और ऊपर से बाइसेक्ट इस पे करते हैं राइट एंगल पर। तो ये बेसिकली इम्पॉर्टेंट था। So here we are having our exercise that is 3.4. तो यहाँ से एक क्वेश्चन देख लेते हैं। So let's pick question number 2. Okay, so here we are having a trapezium must TS parallel to MU. तो जो TS है वो MU के पैरेलल है, दोनों साइड पैरेलल है। Okay, and the perimeter of trapezium is 48. तो perimeter के बारे में, so perimeter क्या होगा, sum of all sides ओके तो यहाँ पे देखेंगे सम, हमें पेरीमीटर गिवन है 48 सेंटीमीटर। वन ऑफ द पैरेलल साइड इज ट्वाइस द अदर। ओके, तो अगर एक x है तो दूसरी क्या होगी, 2x, एंड द सम ऑफ अदर नॉन पैरेलल साइड इज 21। तो अगर मैं a और b को देखूँ तो यहाँ पे इन दोनों का सम हमें गिवन है 21। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो x प्लस 2x प्लस a प्लस b, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमें यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल रहा है, दिस इज 48 इक्वल्स टू 3x एंड a प्लस b, मतलब नॉन पैरेलल साइड का सम जो हमें कितना गिवन था, 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर करेंगे तो a प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, दैट इज 3x, दिस इज 7, दिस इज 27 इक्वल्स टू 3x। सो करेंगे तो हो जाएगा 9 इक्वल्स टू x। आंसर। ओके, सो बाकी क्वेश्चंस भी इजी है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं हम, दिस वन। सो देखिए यहाँ पे हमें काइट गिवन है, एंड काइट में हमसे यहाँ पे x और y की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, ओके, तो देखिए काइट में जो हमारे पास एडजेसेंट फिगर्स होती है, मतलब tn किसके इक्वल होगा, nr के। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं tn
equals to NR. Okay, and the second is TU equals to RU, क्योंकि यहाँ पे एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. सो हमें यहाँ पे एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर चलिए इसको सॉल्व करते हैं. दैट इज 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 22. एंड यहाँ पर देखेंगे तो टी यू इज 33 इक्वल्स टू 7y माइनस 2. सो ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस. दैट इज 22 प्लस 5. तो यहाँ पे हो जाएगा 3x x इक्वल्स टू 27 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 9. ओके, तो चलिए यहाँ पर आते हैं. दैट इज 33 माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 इक्वल्स टू 7y. तो यहाँ पे करेंगे दिस इज 35 इक्वल्स टू 7y. ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. दैट इज 7 इक्वल्स टू y. ओके, चलिए तो इसको करेंगे तो 7 5 35, 5 इक्वल्स टू y एज आंसर. ओके, सो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.